बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। दुर्गापुर के मारकोनी इलाके में तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय पवित्र चटर्जी स्मृति भवन को दुर्गापुर स्टील प्लांट प्रबंधन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं महिषकापुर इलाके में DSP की जमीन पर बने CPM के एक पार्टी कार्यालय को हटाने के लिए जब DSP प्रबंधन पहुंचा तब CPM कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ उनकी तीखी बहस हो गई। स्थिति तनावपूर्ण होने पर अंततः DSP अधिकारियों को वहां से वापस लौटना पड़ा। CPM नेताओं का कहना है कि किसी भी प्रकार की बेदखली या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को उचित नोटिस दिया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन सभी मामलों में नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करे। घटना के बाद इलाके में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। দেখুন, এটা একটা গণতান্ত্রিক দেশ। গণতন্ত্রটাকে রক্ষা করতে হবে। সেই গণতন্ত্রকে রক্ষা করা অনুযায়ী আমাদের এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট। সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টে ট্রেড ইউনিয়ন বেস জায়গা। সেখানে সব ধরনের 7-7টা ট্রেড ইউনিয়ন আছে। আমাদের যত কিছু অ্যাক্টিভিটি হয়, ভালো হোক বা আরও কিছু হয়, যে আরও কিছু অ্যাক্টিভিটি করতে হবে, সবগুলো আলোচনার মাধ্যমে হয়। তার একটা ক্রাইটেরিয়া ঠিক হয়। সেখানে আমরা পরিষ্কার করে একটা কথাই বলছি যে পুলিশকে বলছি, আপনাদের প্রশাসনিক স্তরে সমস্ত রাজনৈতিক দল আছে, সেই রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করুন। আর আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন স্তরে ট্রেড ইউনিয়ন যেখানে যা আছে, ট্রেড ইউনিয়ন স্তরে আলোচনা করে আপনারা ঠিক করুন যে এই ক্রাইটেরিয়ার বেসিসে সমস্ত আনাধরের জায়গা ভাঙছে। সেই ক্রাইটেরিয়াটা ঠিক হবে, আলোচনা হবে, গণতান্ত্রিক পরিবেশে আলোচনার মধ্যে থেকে দাঁড়িয়ে সমস্ত বিষয়টা আমাদের আলোচনার মধ্যে চাইছি। আমরা জোর জবরদস্তি কোনো কিছু হওয়ার বিরুদ্ধে। জোর জবরদস্তি করা যাবে না, কেন জোর জবরদস্তি এটা একটা গণতান্ত্রিক জায়গা, সবার মতামত আছে, বিভিন্ন পরিবেশ আছে, পরিস্থিতি আছে, সবটাকে যদি আমাদের সুস্থভাবে রাখতে হয় তাহলে আমাদের এই আলোচনার জায়গাটা একটু রাখতে হবে। এইটাই কি মনে হচ্ছে কোনো রাজনৈতিক কারণে এগুলো ভাঙা হচ্ছে? না, রাজনৈতিক কারণ কি? আমরা তো পরিষ্কার বললাম, সর্বস্তরে ট্রেড ইউনিয়ন, পুলিশকে বললাম, সর্বস্তরে রাজনৈতিক দলগুলোকে মিলে আলোচনা করে ক্রাইটেরিয়া ঠিক করে ভাঙুন। ক্রাইটেরিয়া ঠিক করুন। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছে।
আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के मंझियाड़ा गांव में आज भारतीय जनता पार्टी के नए पार्टी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बाराबनी के विधायक अरिजीत रॉय मुख्य रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। विशेष रूप से बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रही। भाजपा नेताओं ने कहा कि नया कार्यालय क्षेत्र में संगठन को और अधिक मजबूत करने तथा आम लोगों की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम के दौरान पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। এটাই তো ছিল। দেখুন এখানে যে তৃণমূল কংগ্রেস বিগত দিনে 15 বছর ধরে এখানে সন্ত্রাসের উপর ভর করে মানুষকে শাসিয়ে লাল চোখ দেখিয়ে দাবিয়ে রেখেছিল, কিন্তু মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ততা আগেও ছিল, কিন্তু তারা এই তাদের অত্যাচারের ফলে তারা প্রকাশ করতে পারেনি। এবারে পশ্চিমবঙ্গে সেই দিন ফিরে এসছে যেখানে মানুষ খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিচ্ছে, নিজের মত ব্যক্ত করছে, নিজের অধিকার ব্যক্ত করছে। এই পরিবেশই চাই এবং আগামী দিনে ভয়মুক্ত বারাবণীর যে ডাক আমি দিয়েছিলাম, সেই ভয়মুক্ত বারাবণীর ডাকে সমস্ত মানুষ সাড়া দিয়ে আজকে ভয়কে আউট করে ভরসাকে ইন করেছে এবং তাদের বিধায়ক অরিজিৎ রায় নয়, তাদের এলাকার ঘরের ছেলে, পাড়ার ছেলে, গ্রামের ছেলে অরিজিৎ রায়কে তারা গ্রহণ করেছে। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और परिवहन विभाग ने संयुक्त अभियान शुरू किया है। सोमवार को बंगाल झारखंड सीमा स्थित डुबुरडीही चेक पोस्ट क्षेत्र में अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया। डीसीपी पीवीजी सतीश ने बताया कि दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों की पहचान कर वहां यातायात सुरक्षा बढ़ाने और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधि प्रियांशु सिंह ने कहा कि नए साइन बोर्ड लगाने, यातायात को सुगम बनाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की योजना बनाई गई है। प्रशासन का दावा है कि इस पहल से NH-19 पर दुर्घटनाओं में कमी आएगी और सड़क यात्रा अधिक सुरक्षित बनेगी। আমরা আজকে ন্যাশনাল হাইওয়ের উপরে একটা জয়েন্ট ভিজিট করছি। ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি, আমাদের ট্রাফিক পুলিশ, থানারও থাকছে, আর MBI সাহেব আছেন ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে। তো আমরা স্টাডি করছি যে জায়গাগুলো যেখানে অ্যাক্সিডেন্ট বেশি হয় বা কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইস্যু থাকে, তো ওইগুলো আমরা NHAর সাথে জয়েন্ট ভিজিট করে ওগুলোকে রিজলভ করার জন্য আজকে আমরা दुर्गापुर महकमा शासक कार्यालय के पास स्थित एक शराब दुकान में देर रात हुई चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। चोर दुकान के पीछे का ताला तोड़कर अंदर घुसे और कैश काउंटर से करीब 5 लाख रुपए नकद तथा कई महंगी शराब की बोतलें लेकर फरार हो गए। सुबह दुकान खोलने पहुंचे कर्मचारियों ने टूटा हुआ ताला देखकर घटना की जानकारी पाई। जांच में कैश काउंटर खाली और कई कीमती शराब की बोतलें गायब मिली। बताया जा रहा है कि चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। न्यू टाउनशिप थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। प्रशासनिक कार्यालय के पास हुई साहसिक चोरी के बाद इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। রাত 2টা
2:30-এ দুজন ঢুকেছিল, ফাঁসির টপকে ঢুকেছে। আমাদের শপের ওয়াইন শপের পিছনের গেটটার তালাটাকে কুড়াল দিয়ে ভেঙেছে। তার ফুটেজ আছে আমাদের কাছে। কুড়াল দিয়ে ভাঙার পর ক্যাশের সোজায় গেছে, ক্যাশের ড্রয়ারগুলো কুড়াল দিয়ে ছাড়িয়েছে, পুরো 5 লাখ টাকা ক্যাশ উঠিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। পুলিশ এসেছিল, পুলিশ ভেরিফিকেশন করে গেছে, পুলিশ চেক করে গেছে, সিসি ফুটেজ নিয়ে গেছে পুলিশ। থানায় অভিযোগ করা হয়েছে, থানায় কমপ্লেন করা হয়েছে, এফআইআর করা হয়েছে, ওগুলো করা হয়েছে। মোটামুটি 5 লাখ টাকার মতো ক্যাশ নিয়ে তারা স্যাটারডে সানডে 2 দিন ব্যাংক বন্ধ ছিল, ব্যাংক করতে পারেনি। 2 দিনের পুরো সেলের টাকা, ক্যাশ ইন হ্যান্ডের একটা টাকা, একটা কয়েন ফোন করে ছেড়ে দিয়েছে, পুরোটাই নিয়ে টোটাল ক্যাশ খালি করে দিয়েছে। টোটাল ক্যাশ 1 টাকা একটা কয়েনও পড়েছিল, পুরো কয়েনটাকেও তুলে নিয়েছে। আর দোকানের কিছু জিনিসপত্র, কিছু দোকানে কিছু জিনিসপত্র তুলে নিয়েছে। কিছু ব্র্যান্ডেড দামি দামি মদ আছে, যেমন ব্লু লেভেল আছে, রয়্যাল স্যালুট আছে, সিভাস 25 আছে, এইগুলো নিয়ে গেছে। কিছু কস্টলি মদগুলো ওরা তুলে নিয়ে চলে গেছে। কি নাম? আমার নাম অভিজিৎ মাকড়। कुल्टी के विधायक एवं लोकप्रिय भाजपा नेता डॉक्टर अजय पोद्दार ने सोमवार को लोक भवन में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। उनके मंत्री बनने की खबर से पूरे कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। कुल्टी मंडल 1 भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ढाक ढोल बजाकर जश्न मनाया। इस दौरान गेरुआ अबीर उड़ाया गया, पटाखे फोड़े गए और लोगों के बीच मिठाइयां बांटी गई। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के प्रसिद्ध छिन्नमस्तका मंदिर में पूजा अर्चना कर डॉक्टर पोद्दार के सफल कार्यकाल की कामना की। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कुल्टी के इतिहास में पहली बार कोई विधायक मंत्री बना है। उनका विश्वास है कि अब क्षेत्र के लंबित विकास कार्यों को गति मिलेगी और जनता को इसका लाभ मिलेगा। डॉक्टर अजय पोद्दार के मंत्री बनने से भाजपा समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और इसे कुल्टी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सोमवार को बनपुर में हॉकरों के संयुक्त प्रतिरोध के सामने सेल आईएसपी प्रबंधन को पीछे हटना पड़ा। अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचे अधिकारियों को विरोध के चलते बीच में ही अभियान रोककर लौटना पड़ा। वहीं आईएसपी ने इसके पहले ख्याली क्लब समेत 2 क्लबों को ध्वस्त कर दिया था। इस संबंध में आईएसपी के एक अधिकारी ने कहा कि वो मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं है। उन्होंने केवल इतना बताया कि सेल आईएसपी प्रबंधन के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध और प्रदर्शन के कारण फिलहाल अभियान स्थगित कर दिया गया है। वहीं सीपीएम नेत्री शिल्पी चक्रवर्ती ने कहा कि बनपुर स्थित सेल आईएसपी का आधुनिकीकरण स्वागत योग्य है, लेकिन जिन लोगों ने दशकों से यहाँ कारोबार किया है और जिनकी जमीन पर यह उद्योग स्थापित हुआ, उन्हें बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हटाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की विधायक एवं राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल रविवार को यहाँ आई थी, लेकिन उन्होंने प्रभावित हॉकरों से बातचीत नहीं की। क्या डिसीजन क्या हुआ? देखिए, मुझे मीडिया में ऐसा कुछ नहीं बोलना है। मीडिया में जो कुछ भी है आप लोग तो अभी तोड़ने के लिए आए थे, तो क्या ऑफिशियल फोरम जो हमारा पीआर है उसके माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। एक अभियान जो इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट चल रहा है ये जारी है। जो भी अनऑथोराइज है, आपके माध्यम से भी मैं बोलता हूँ कि वो अपना जगह खाली करें और कंपनी उस जगह को रिक्लेम करेगी। अभी खाली अगर नहीं किया गया तो मुझे कुछ नहीं बोलना है। घटना घटी सर, क्या हुआ है? नहीं, आप खुद देख रहे हैं क्या हुआ है, इसमें मुझे कुछ नहीं बोलना है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा। अभी लोग जाम कर दिए हैं। अभी सर रोड पूरा ब्लॉक किया है। अभी काम बंद कर दिया गया, बुलडोजर बंद कर दिया, चलना बंद कर दिया गया। ये इसके अलावे बाकी लोकेशंस भी आज हमारे प्लान में है, वहाँ हम जाएंगे और अपने एक्शन को कंटिन्यू रखेंगे। ये अभी जो ये लोग रोड अवरोध करके रखे, इसके बारे में क्या आप लोग? इसके बारे में देखिए, मैं आपसे इस मैटर में कभी कोई कुछ बात नहीं कर सकता। जो कुछ भी हो रहा है आप देखेंगे। ये यहाँ अभी फिलहाल स्थगित हो रहा है, बाकी का अभियान हमारा कंटिन्यूड रहेगा।
रानीगंज क्षेत्र की बांसड़ा कोलरी में नई कंटिन्यूअस माइनिंग परियोजना के विरोध में सोमवार को स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खदान के मुख्य द्वार पर कोयला परिवहन रोक दिया और खनन क्षेत्र के पास विरोध जताया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि ईसीएल द्वारा पहले स्थापित ओपन कास्ट खदानों के कारण क्षेत्र की कृषि भूमि, वन क्षेत्र, धार्मिक स्थल और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है। उनका कहना है कि खनन के बाद प्रभावित जमीनों को पूर्व स्थिति में बहाल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि अब प्रस्तावित कंटिन्यूअस माइनिंग परियोजना से पर्यावरणीय नुकसान और बढ़ेगा तथा पूरे इलाके पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसी मांग को लेकर उन्होंने खदान परिसर में प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि यदि परियोजना को नहीं रोका गया तो आंदोलन लगातार जारी रहेगा। আজকে বিক্ষোভ হচ্ছে যে এইখানে বাসড়া এলাকায় আদিবাসী এসটি এসসি এলাকায় একটা সিএম প্রজেক্ট করার জন্য বাসড়া কলিয়ারি কর্তৃপক্ষ ঠিক করেছে। আমরা গত বছর থেকে এই সিএম প্রজেক্টের বিরোধিতা করছি, কারণ সেই সিএম প্রজেক্টটা আমাদের গ্রামের সন্নিকটে হচ্ছে এবং যেটা ওনাদের পরিকল্পনা আমাদের বাসড়া এলাকায় এই প্রজেক্ট হলে ওই আদিবাসী এলাকা এবং এসটি এসসি এলাকায় মানুষগুলো ধ্বংসের মুখে চলে যাবে এবং সেই জন্যেই আমাদের আজকের এই বিক্ষোভ। আমরা এর আগেও করেছি, আমরা গত বছর থেকে করছি। আমরা 10 এপ্রিল করেছিলাম। 10 এপ্রিল এসিএল ম্যানেজমেন্ট কথা দিয়েছিলেন যে 1 মে আমরা আপনাদের সঙ্গে বসবো এবং আপনাদের কথা শুনবো কী অসুবিধা, তারপরে আমরা আমাদের প্রকল্প বাতিল করবো কি করবো না সেটা আপনাদেরকে জানাবো। 1 তারিখ সেই মতো আমরা বসেছিলাম, সেখানে প্রশাসনের আধিকারিকরাও ছিলেন এবং এসিএল কর্তৃপক্ষের জিএম এবং এজেন্ট ম্যানেজার এনারাও ছিলেন এবং অন্যান্য এসিএল প্রতিনিধিও ছিলেন। সেখানে কথা হয়েছিল, আমরা আমাদের কথা রেখেছিলাম যে এইখানে আমাদের সিএম প্রজেক্ট হলে বাসড়া সন্নিকটে এই এলাকার মানুষগুলোর অনেক অসুবিধা হবে এবং সবচেয়ে মারাত্মক তারা পরিবেশ দূষণ যেভাবে হবে এবং তারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হবে, যেহেতু ওনাদের যে প্রস্তাবিত যে প্রকল্প আছে সেই প্রকল্পের যে কয়লা কনভেয়ার বেল্টের মাধ্যমে আমাদের বাসড়া এলাকার যে গ্রামটা আছে আদিবাসী পাড়া, ভূঁইয়াপাড়া 4 নম্বর ভূঁইয়াপাড়া, দোতলা মাঝিপাড়া, আমু মাঝিপাড়া ওই মাঝামাঝিভাবে যাবে এবং সেই যে গুড়িগুলো উঠবে, যে সেই গুড়ির মাধ্যমে যে ডাস্ট হবে, ডাস্টে সেই এলাকাটা ভরে যাবে এবং পরিবেশ দূষণ হবে। তার সঙ্গে আমরা সবচেয়ে যে বড় হচ্ছে যে আপনারা সকলেই জানেন যে সিলোকোসিস বলে যে রোগটা হয় এবং বিভিন্ন ধরনের যে उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। आसनसोल के 5 गछिया स्थित आनंदम रेजिडेंसी में 2 जून से 12 जून तक 1.25 लाख सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ एवं महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन आनंद वाहिनी संस्था की ओर से किया जा रहा है। इसकी जानकारी संस्था के प्रमुख शंभुनाथ झा ने एक होटल के सभागार में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में दी। इस अवसर पर आनंद वाहिनी की राष्ट्रीय महामंत्री निभा जी भी मौजूद थी। शंभुनाथ झा ने बताया कि आनंद वाहिनी पूरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी से जुड़ी संस्था है। शंकराचार्य जी कई बार आसनसोल आ चुके हैं और यहाँ उनका मठ भी स्थित है। उन्होंने कहा कि धर्म के प्रचार प्रसार और अधिक से अधिक लोगों को धार्मिक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने शहरवासियों से इस अनुष्ठान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि 2 जून से 12 जून तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ, भजन कीर्तन और महायज्ञ का आयोजन होगा। श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। नमस्कार, मैं निभा प्रकाश आनंद वाहिनी की राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और ये मुझे पद गुरुदेव के द्वारा गुरुदेव शंकराचार्य जी के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है और उनका यहाँ आनंदम रेसिडेंसी में आश्रम है अपना, जिसमें कि वो आते हैं तो कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, 15 दिन ऐसे वो रहते हैं।
क्योंकि वो सनातन धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म के संस्थापक कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा उन 4 पद दिया गया था 4 दिशा में। तो उसमें एक दिशा के जो पूरी पीठ है, पूरी के पीठाधीश्वर जो शंकराचार्य जी हैं, उनका यहाँ आश्रम है आपका आनंदम रेसिडेंसी में, शंकराचार्य आश्रम के नाम से है। तो वहीं हम लोगों का, क्योंकि गुरुदेव का इच्छा है जो बड़ा जो कार्यक्रम धर्म से रिलेटेड जितना भी हो, जिससे कि आम व्यक्तियों का जो हमारा जो सनातन धर्म आम परिवार में लुप्त होते जा रहा है। बड़े बड़े साधु सन्यासी तो इस चीज़ को समझ रहे हैं, पर छोटे छोटे परिवार में ये सब चीज़ को समझ नहीं पा रहे, बच्चे नए समझ नहीं पा रहे जो क्या है आखिर सनातन धर्म है क्या, उससे क्या प्राप्त होता है। तो ये सब चीज़ कार्यक्रम होना चाहिए। तो उन्हीं के आज्ञा से, उन्हीं के आदेश से हम लोग ये जो है 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं, जिसमें कि ये शुरू हो रहा है आपका 2 जून से और 12 जून तक चलेगा। 11 दिनों का है। उसमें बंगाल से, काशी से, मिथिला से जितने भी विद्वान पंडित हैं वो सभी आएंगे और सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक वो कार्यक्रम चलेगा। और प्रत्येक दिन जो है सो हनुमान चालीसा चलेगा। शाम को भंडारा है जो सब प्रसाद के रूप में उसे प्राप्त कर पाएंगे। और चूंकि कहते हैं जो कलयुग के देवता। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।